پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ مکمل معاشی استحکام کے حصول کے لیے سفر تیزی سے جاری ہے۔ معاشی استحکام کا سفر طویل، مشکل اور چیلنجز سے بھرپور ہے۔ معاشی ترقی کے لیے اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ برآمدات میں اضافہ، شرح سود میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ جنوری میں ترسیلات زر $3 ارب تک پہنچ چکی ہیں۔ IMF پروگرام کے بعد میکرو اکنامک استحکام آیا۔ پائیدار ملکی ترقی کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ معدنیات کے شعبے پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم کی دبئی میں پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے گفتگو۔ شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر دبئی میں موجود۔ وزیر اعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے کلیدی خطاب کریں گے۔ اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل تبدیلی اور گورننس اصلاحات کے لیے پاکستان کے ویژن کو اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم کی UAE قیادت کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ جوڈیشل کمیشن نے کثرت رائے سے 6 ججوں کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس یاحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ۔ ارکان بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر نے بھی اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ کے نام کی منظوری۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین منہور کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا عارضی جج مقرر کر دیا۔ آرٹیکل 181 کے تحت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو عارضی جج سپریم کورٹ لگایا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کی سپریم کورٹ میں تقرری کا معاملہ مؤخر۔ ہمارا بھی صرف استدعا اتنا ہی تھا کہ چند دنوں کے لیے اس پروسیڈنگز کو پوسٹپون کرے، چونکہ وہ پوسٹپون نہیں ہوئے لہٰذا ہم دونوں نے اس میں اپنی شرکت نہیں کی۔ ہمارا مطالبہ تھا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ 2 ججوں نے بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا مسئلہ ہے۔ سینیورٹی کے معاملے پر ہماری درخواست نہیں سنی گئی۔ اس اقدام سے ججوں میں بھی رنجش پیدا ہوگی۔ ہم اصول پر کھڑے ہیں، شخصیات کی بات کبھی نہیں کی۔ سینیٹر علی ظفر کی میڈیا ٹاک۔ 26ویں ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف وکلاء کا احتجاج۔ وکلاء کی سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش۔ ریڈ زون میں داخلہ نہ ملنے پر وکلاء کا سری نگر ہائی وے پر احتجاج۔ پولیس کا لاٹھی چارج۔ سرینا چوک میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں اور ہاتھا پائی۔ پولیس نے اسلام آباد میں ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا۔ وکلاء پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ ڈی چوک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پارلیمنٹ کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا گیا۔ جس طریقے سے ترمیم کی گئی وہ شرمناک ہے۔ PTI رہنما حامد خان کی گفتگو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججوں کی ریپرزنٹیشن مسترد۔ صوبائی ہائی کورٹ سے ججوں کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیورٹی لسٹ برقرار۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پرانی جج برقرار۔ 5 ججوں نے ریپرزنٹیشن بھجوائی تھی۔ ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار شامل۔ جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس امن رفت کی ریپرزنٹیشن مسترد کی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کا ایک اور فیصلہ۔ ایڈیشنل جج راجہ ارام امین محاذ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے قانونی امور سے ذمہ داری واپس لے لی گئی۔ جسٹس راجہ ارام امین محاذ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی ونگ کے امور کو سپروائز کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر۔ اپوزیشن ارکان کا ایوان میں شدید شور شرابہ اور نعرے بازی۔ PTI ارکان کے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر بانی کو رہا کرو کے نعرے۔ اپوزیشن ارکان ایوان میں ڈیسک اور سیٹیاں بجاتے رہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بھی اپنے ارکان کو روک نہ پائے۔ اپوزیشن نے احتجاج کے بعد ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کورم کی نشاندہی کی۔ کورم پورا نکلا۔ وزارت آبی وسائل کے افسران گیلری میں موجود نہ ہونے پر اسپیکر کا اظہار برہمی۔ انکم ٹیکس ترمیم
तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे तक मुलतवी। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। लीबिया के साहल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। लीबिया हलाल अहमद ने तारकीन वतन की 10 लाशें निकाली। पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कश्ती मरसाडेरा बंदरगाह के करीब उल्टी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है राबलस में पाकिस्तानी सफारतखाने ने लाशों की शिनाख्त के लिए टीम जाविया हॉस्पिटल भेज दी है। पाकिस्तानी सफारतखाना मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फॉल कर दिया गया। कश्ती लीबिया से इटली की तरफ जा रही थी। डूबने वाले अफराद कई महीनों से लीबिया के कैंप्स में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डालेगा। अल्लाह ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की लामत है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। सदर मुमलिकत का दौरा पुर्तगाल आसिफ अली ज़रदारी की लिस्बन में प्रिंस रहमान हुसैनी से मुलाकात। वालिद प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इज़हार। पूरी कौम एक सच्चे दोस्त और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। इंसानियत के लिए मरहूम करीम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत ने मरहूम करीम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ अली ज़रदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। हम रियासत आइन और मुल्क के वफादार हैं। सियासत में तशद्दुद के हम खिलाफ हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। आज हम अमन के लिए निकले हैं। हमारे खत्ते में अमन नहीं। फाटा इंज़माम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा था कि फाटा में रेफरेंडम किया जाए। इंज़माम का पहला मकसद अमन था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अमन से महरूम कौम हर चीज़ से महरूम होती है। हमारे हुक्मरान अमेरिका के पैरोकार हैं। अमेरिका का कठपुतली नेतन्याहू कहता है कि फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब में बसाया जाए। अमेरिका फिर अफगानिस्तान में दोबारा जंग छेड़ना चाहता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मार्ला एनक्लेव का दौरा जारी। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मार्ला एनक्लेव के 50% तरक्याती काम 14 अगस्त और 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके प्लॉट्स का कब्जा मालिकान को देने का फैसला। तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मार्ला एनक्लेव तक आसान रसाई के लिए नया रास्ता तामीर करने की हिदायत। दौरान सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजिम की दौरान मुलाजमत इंतकाल से मुतालिक डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नौकरी की सूरत ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज़ बनाया गया। दीगर तमाम फ़वाइद मरने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना को मिलते रहेंगे। शहीद अहलकारों और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वर्सा फैसले से मुतासर नहीं होंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वजारतों, डिवीज़न और सूबों को ख़त लिख कर आगाह कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड का दूसरा मरहला 25 एकड़ तक अराजी रखने वाले काश्तकारों को शामिल करने का फैसला। किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ कर्ज की हद में इजाफे के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम शुरू। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज देंगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत का किसान कार्ड के जरिए खरीदारी पर लगाए जाने वाले चार्जेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं किसान कार्ड के जरिए 30% कैश निकलवाने की सहूलत और डीजल खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए। किसान कार्ड के जरिए कॉटन क्रॉप इंश्योरेंस पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने का फैसला। अब तक 5,35,000 किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी हो चुकी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारका पेका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंडिया। पेका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है। किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। आज़म नज़ीर तारकी पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। पेका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरख्वास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा कराने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तिफसार। लाहौर हाई कोर्ट में पेका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई कोई डील नहीं करेंगे। बानी का कहना है अपने मुकदमात का सामना करूंगा। बानी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक होना पड़ेगा। बानी अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं, हुकूमत एक इंस्टॉल रजीम है। बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराने में नाकाम रही। कानून साजी कैसी, जो पर्ची आएगी वो अवाम में पेश की जाएगी। मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। जनवरी में तरसलात ज़र में 25.2% इजाफा। मुल्की तरसलात ज़र जनवरी के महीने में $3 अरब पर पहुंच गई। रवा माली साल के 7 माह में $20 अरब 80 करोड़ तरसलात ज़र मौसूल। रवा माली साल तरसलात ज़र में 31.7% इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 7 माह में तरसलात ज़र का हुजम $15 अरब 80 करोड़ था। स्टेट बैंक। गजा खरीद कर अपनी मलकियत में लाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की हर्जा सराई जारी। गजा के लिए मेरे मंसूबे के तहत फलस्तीनियों को घर वापसी का कोई हक नहीं है। गजा को मुस्तकबिल के रियल स्टेट प्रोजेक्ट के तौर पर सोचें। हम गजा के मालिक होंगे, ये ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा होगा। गजा के शहरियों के साथ एक मुआहदा कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में ज़मीन की तक़सीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे फलस्तीनियों का कत्ल ना हो। मशरिक़ वस्ता फलस्तीनियों को बचाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूँगा। गजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मकाम बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मज़मूम अज़ान का इजहार। इसराइल ने गजा पर ट्रंप का मंसूबा ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा अमेरिकी सदर के मंसूबे में इतनी जान है, यह गजा को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इसराइल का अमेरिका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। हमास के अमेरिकी सदर के बयान की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। फ़लस्तीनी अवाम अपने इलाके छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। हमास का रद्द अमल।